راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا ایک دوست کا واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور خاص واقعہ وہ یہ تھا کہ وہ ایک ادارے میں کام کیا کرتا تھا اور بڑی سادہ سی جاب تھی اور تھوڑے سے پیسے کماتا تھا، لیکن بہت اچھا تھا، خدا کے خوف والا تھا، با کردار تھا۔ اس کے رشتے کی بات چلی کسی جگہ پر، وہ خاندان پہلے سے ہی اس خاندان کو جانتا تھا، لڑکی لڑکا بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اب بات کیا ہوئی کہ جی اس کی تو نوکری اتنی اچھی نہیں ہے، یہ پیسے اتنے اچھے نہیں کماتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کیا کرے گا، کیا ہوگا، ہماری بیٹی کا کیا ہوگا۔ لیکن وہیں پر اس لڑکی کی بڑی بہن نے ایک بڑا سٹینڈ لیا۔ اس نے کہا کہ لڑکا با کردار ہے، ہم اسے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لڑکے کے اندر خدا کا خوف ہے، لڑکا محنتی ہے، باقی تو خدا پر چھوڑ دیجئے، سب کچھ خدا مہیا کر دے گا۔ میں تو یہی کہوں گی کہ یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ رشتہ ہو گیا جناب، خدا نے ان کو برکت دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کسی بھی طرح سے ان کو ایک آفر آئی، وہ باہر کے ملک چلے گئے اور پھر اتنی زیادہ کمائی ہوئی خدا کے فضل سے، پھر انہوں نے 2 گھر بنائے، گاڑی بھی خدا نے دی، بچے بھی اچھے اسکولز میں پڑھنے لگ گئے اور اب وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ خدا کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، ہم تو ایسا کرنے کے لائق نہ تھے، خدا نے برکتوں کا دروازہ ہم پر کھول دیا۔ تو بھائی گو کہ ہم رشتے ناتوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی چیزوں پر زیادہ غور کریں۔ ہم کردار دیکھیں، خدا کا خوف دیکھیں، باقی چیزیں خدا پر چھوڑ دیں۔ خدا رحم کرے گا، خدا برکت دے گا، خدا ہمارے بچوں کو بیٹی ہے یا بیٹا سرفراز کرے گا۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پہ کان لگا، اپنی وفاداری و صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بیکل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پہ غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پہ دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک ہم نے سن لی جناب۔ یقیناً خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، جب ہم اس کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیے سنیں حمدیہ گیت۔ مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، شوقت نال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط میرا دل ہے۔
शुक्राने गावा तेरे, मजबूत मेरा दिल है। बड़ी तेरी है रहमत, आसमानाते भी ऊंची। बड़ी तेरी है रहमत, आसमानाते भी ऊंची। या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है, बदलाती पहुंची। मजबूत मेरा दिल है। हमदिया गीत हमने सुन लिया और हस्बे मामूल मैं शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और कुतूब। जनाब इस वक्त जो सबसे पहला मैसेज है मेरे सामने वो है अली रजा साहिब का। इनका ताल्लुक बहावल नगर से है। लिखते हैं, जनाब प्यारे भाई आदिल मुश्ताक साहिब, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज में समात फरमाया। प्रोग्राम में तिलावत कलाम मुकद्दस सुनी और गीत भी सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में जो लिसनर्स के पैगामात शामिल थे वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। अमजद खान, हकीम सदीक माखा, नियाज अहमद, डॉक्टर जफर भुट्टा, मुदस्सर तुफैल और जुबैर अब्बासी की जानिब से ये खत आया है। ये लिखते हैं, मैडम उज़मा यूनुस साहिबा, आज का प्रोग्राम सुना। आगाज में एक बाप का वाकया सुनाया गया कि अपनी अपनी बातें एक दूसरे से कहने से काफी मसले हल हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। फिर तिलावत कलाम पाक सुनी, फिर हमदिया गीत सुना। सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सी बरकतें मिली। शुक्रिया। एक और मैसेज है जनाब मेरे पास इस वक्त, वो है मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद असदुल्ला और हाफिज नईम अहमद की जानिब से, जिनका ताल्लुक झंग सिटी से है। लिखते हैं, प्रोग्राम राह जिंदगी, मोहतरम अनवर जोसेफ साहिब, एडमिन प्रोग्राम राह जिंदगी से अपना फेवरेट प्रोग्राम राह जिंदगी सुना। हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा था जिसे भाई आदिल मुश्ताक ने पेश किया। आदिल भाई ने प्रोग्राम के आगाज में शजरकारी के हवाले से लब कुशाई की। वाकई अगर हम सब बाजों की पां की जगह दरख्तों की छां करें तो हमारा मुल्क सरसब्जो शादाब बन सकता है और मौसमी हालात बेहतर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें इतने प्यार से मैसेज लिखा। हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदावंद ताला आपको बरकत दे जनाब। सफदर शाह साहब हैं भावल नगर से। लिखते हैं, इंचार्ज प्रोग्राम राह जिंदगी जनाब मोहतरम भाई अनवर जोसेफ साहिब, सलाम अर्ज। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप और आपकी पूरी टीम ठीक होंगे। आज का प्रोग्राम राह जिंदगी जो कि प्यारी बहन उज़मा यूनुस साहिबा की मेजबानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का आगाज इंसानों में कमियों पर, लोगों के तानों पर इस गुफ्तगू से हुआ, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। अमजद महमूद जख्मी साहब, वाह क्या बात है। लिखते हैं, स्वीट बाजी उज़मा यूनुस साहिबा, खुलूस भरा सलाम। प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी बातों पर सराहना हमेशा जिंदा दिलों का काम है। जिन्हें कुछ नहीं करना होता वो ऐसे काम बढ़ चढ़ कर करते हैं, उनसे परहेज ही बेहतर है। बाबरकत तिलावत कलाम पाक से दिल मुनव्वर हुए। हमदिया गीत भी पसंद आया। मेरा खत प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज करने का शुक्रिया प्यारे भाई अमजद महमूद जख्मी। असद मुराद बलीदा जिला केच से लिखते हैं, प्रोग्राम राह जिंदगी उज़मा यूनुस की मेजबानी में सुना, जिसमें औलाद न होने की गुफ्तगू करते हुए आगाज किया गया, जिसमें तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत भी सुना। खुतूत और मैसेजेस भी शामिल थे, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें फीडबैक दिया। प्रोग्राम में अभी हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला
कुदरत के करिश्मे। सामईन, हर रंग अपनी अलग से पहचान और जुबान रखता है और इंसान लाखों सालों से इसे जानने की खोज में लगा हुआ है। इसलिए हर देखने वाली आंख रंगों की करिश्माती अहमियत की कायल है, क्योंकि ये रंग चीजों की वजाहत पेश करते हैं। सामईन, रंगों ने हमेशा इंसानी मिजाज और तबीयत पर अपना गहरा असर मुरतब किया है और हमारी जिंदगी और शख्सियत हमेशा रंगों से मुतासिर रही है, क्योंकि हम रंगों में कशिश महसूस करते हैं और यही कशिश हमें खुशी और सुकून मुहैया करती है, चाहे ये हसीन रंग कोसे कज़ा के हों या फिर फूलों के। सामईन, जो रंग हम देखते हैं उन्हें रोशनी की बदौलत पहचाना जाता है, क्योंकि रोशनी जब किसी चीज के साथ टकराती है तो कुछ रोशनी जज्ब हो जाती है और बाकी बचने वाली गैर मुस्तहकिम रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक खास किस्म का रंग पैदा करती है, जिसे हम उस चीज का रंग समझते हैं। कुदरती तौर पर किसी भी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर मुनहसिर होता है कि वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर जुम्बिश करना पसंद करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी पसंद के मुताबिक फ्रीक्वेंसी जज्ब करते हैं, जबकि बाकी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी में हमें उस शय या जिस्म का रंग दिखाई देता है, जिससे टकराकर रोशनी हमारी आंख की तरफ आती है। लेकिन वो शय या जिस्म जो सारी की सारी रोशनी को जज्ब कर लेता है, वो स्याह रंग का नजर आता है। ये खुदा ताला ही की कुदरत है कि रंग हकीकी तौर पर रोशनी की वो खासियत है जो अंधेरे से मिलकर वजूद में आती है, क्योंकि जब हमारी निगाहें फजा से घूमकर जमीन की तरफ लौटती हैं तो आसमानी रंग की लातादाद रंगीन शुआएं मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ फजा में रंग के साथ और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो एक रंग में बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर देती हैं। और रंग का जो मंजर हमें नजर आता है, इसमें रोशनी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और दीगर गैसें भी शामिल होती हैं, जबकि इन गैसों के अलावा कुछ हल्के साए, कुछ और अज्जा समेत आसमानी रंग भी इसमें शामिल हो जाता है। इन अज्जा से बनने वाली मुख्तलिफ किस्मों को हम रंगों का नाम देते हैं। इंसानी दिमाग में खरबों खाने हैं और इनमें से बरकी रो गुजरती है, जिसके जरिए से हमारे ख्यालात शऊर और तहतुल शऊर से गुजरते हैं, जबकि इससे भी ज्यादा हमारे लाशऊर में से गुजरते हैं, जिससे सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि इससे पैवस्त होने वाले ख्यालात, कैफियत और महसूसात भी बराबर बदलते रहते हैं। और सूरज की रोशनी में ये तमाम रंग मौजूद होते हैं जो हम अपनी जरूरियात के मुताबिक हासिल करते रहते हैं। अगर हम जमीन पर फैली हुई खरबों चीजों में से कोई एक भी बेरंग चीज तलाश करना शुरू कर देंगे तो वो हमें हरगिज नहीं मिलेगी, क्योंकि कायनात रंगों के बगैर तसव्वुर ही नहीं की जा सकती। सामईन, कोई इंसान चाहे दरियाफ्त होने वाले 60 रंगों से ज्यादा को कबूल करे या कम पर इक्तफा करे, लेकिन खुदा ताला ने रंगों का इस्तेमाल जिस्म की तवानाई को मुतवाजिन करने, जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी और रूहानी तंदुरुस्ती को बहाल करने के लिए किया है। इन रंगों का इस्तेमाल तिबी साइंस में इंसानी फायदे के लिए भी किया जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए कलर थेरेपी की जाती है, क्योंकि जैसे हमारे माहौल में रेनबो कलर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जिस्म में भी रंग मौजूद होते हैं। और जब इन रंगों में कमी या ज्यादती हो जाती है तो हमें बीमारियां लाहक हो जाती हैं, और इन बीमारियों के इलाज के लिए कलर थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है और इन रंगों को बैलेंस किया जाता है, जिसके बायस बेहतरी आना शुरू हो जाती है। हर उनसर में रंगों की तरतीब का अमल जुदा जुदा है और यही कानून इंसानी जिस्म में भी काम करता है, क्योंकि हमारे अंदर रंगों और लहरों का एक मुकम्मल निजाम काम करता है जो हमारे बदन को खास तवाजुन के साथ साथ अमल करने में मदद देता है, और यही अमल हमारी सेहत का जामिन है। इनकी जरा सी तब्दीली या मामूल से हट जाना हमारी तरबियत बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस खराबी का इजहार तबई या ज़हनी तब्दीली की सूरत में हो सकता है, जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियों का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कैंसर, खून की कमी, सांस के इमराज, टीबी, गैंठिया, हड्डियों के इमराज, असाबी तकालीफ और दीगर गैर मामूली एहसासात और जज्बात वगैरह शामिल हैं। सामईन,
रंगों के बारे में हम वसूख से कह सकते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर और बाहर नजर आने वाली चीजों की बका के साथ साथ हमारी खूबसूरती का सबब भी बनते हैं। बहुत ही अहम मालूमात हमें दी गई है जनाब। रंग ना हो तो शायद ये दुनिया अजीब हो जाए। ये खुदा की बनाई हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, खुदा का शुक्र हो। अभी प्रोग्राम में आप सबको पता बताने वाला हूं जनाब, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप सब हमें बर वक्त फीडबैक भी दे सकें। खत लिखेंगे आप हमें इस पते पर, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे हमारे इस नंबर पर 0305 33 77 310। फिर से बोल रहा हूं 0305 3377 310। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद के नाम से, और इसी तरह से बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। जरूर हमें आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। फिलहाल प्रोग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं और सुनेंगे एक अच्छा सा गीत। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। शुक्रिया नदीम साहिब, आपने अच्छा गाना हम सब के लिए प्ले किया है।
जनाब, आगाज में हम बात कर रहे थे रिश्ते नातों के हवाले से। हम एक जुमला बोलते भी हैं और सुनते भी हैं कि आजकल रिश्ते मिलते ही नहीं, रिश्ते हैं ही नहीं, अच्छे रिश्ते तो कहीं खो गए हैं। ठीक है एक हद तक, लेकिन दूसरी ही जानिब मैं ये भी बात करता हूं कि जो रिश्ते हमें मिलते हैं हम उनकी कितनी कद्र करते हैं। आप यकीन कीजिए, ये इतना दर्दनाक मंजर है कि छोटी से छोटी बात पर भी हम रिश्ता रिजेक्ट करके आ जाते हैं। हम लड़कियों की अक्सर ज्यादा बात करते हैं, अपनी बेटियों की ज्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं लड़कों की बात भी करना चाहूंगा। जो काम करने वाले होते हैं, जो मेहनती लड़के होते हैं, वो हमेशा सादा ही होते हैं। वो बड़े आम से नजर आते हैं, लेकिन वो जिम्मेदार होते हैं, वो काम करने वाले होते हैं। बड़ी मर्तबा हमें बड़ा तैयार श्यार और हीरो टाइप नजर आने वाले लड़के जो हैं, वो लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जनाब वो काम करने वाले नहीं होते, वो जिम्मेदार नहीं होते। शायद कोई इक्का दुक्का हो, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे ही लड़कों की होती है। बिल्कुल इसी तरह से आप लड़कियों पर भी बात ले आइए। हम सारी ही खूबियां, सारी ही क्वालिटीज एक ही लड़की में से ढूंढते हैं। पढ़ी लिखी, घरेलू, घर का काम करने वाली, जिम्मेदार लड़कियां, उनकी शख्सियत ही अलग होती है, उनका दिखाई देना ही अलग होता है। तो हम जरूर अपनी सोच को ठीक करके जाएं जब हम कभी रिश्ता नाता देखने जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब हम ना कर देते हैं, किसी को हम रद्द कर देते हैं, आप यकीन कीजिए कि ये उसके लिए नफ्सियाती तौर पर इतना बड़ा मसला होता है कि कितने दिन लग जाते हैं किसी एक शख्सियत को, लड़की है या लड़का, इस हालत से बाहर आते हुए, परेशानी की हालत से बाहर आते हुए, जब उसे कोई रद्द करके चला जाए। इस बात में खुदा के खौफ को हमेशा हम सामने रखें। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। सिलसिला है हादसात से बचाव। आइए मिलकर सुनते हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव में आज भी हमारे साथ सैफ साहब मौजूद हैं और बड़ी ही मुफीद बातें वो किचन में हिफाजत के हवाले से या एहतियात के हवाले से हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और बड़ी अच्छी और मुफीद बातें हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं बड़े ही खूबसूरत, लेकिन वो बड़े नासमझ होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं उनको किचन से किस तरह से हम दूर रख सकते हैं, या उनका जो किचन में किरदार है उसके हवाले से कुछ बात हम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो किचन के बारे में, जैसे हमने ये प्रोग्राम हमारा सीरीज वाइज चल रहा है कि किचन में जो है क्या सेफ्टी के हमारे प्रिकॉशंस होने चाहिए। यहाँ पे बच्चों को तो आमतौर पे आपने देखा है कि हर चीज में बच्चों की पहुंच से दूर रखे का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बच्चों को किचन में खास तौर पर जाने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हादसात की वजूहात ये छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। कुछ हमारी औरतों की बेख्तियाती भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो खाना पका रहे हैं तो उस दौरान में वो बच्चों को भी साथ साथ एंटरटेन कर रहे होते हैं और उनको उठा के बाज़ औक़ात वो स्लैब के ऊपर बिठा लेती हैं औरतें अपनी जान छुड़वाने के लिए, उनसे बचने के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात करनी चाहिए और खास तौर पे बच्चों को किचन से दूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल सैफ साहब, ये भी एक मुमकिन वजह है कि बच्चे माओं के साथ बहुत अटैच होते हैं, उनका वक्त माओं के साथ बहुत ज्यादा गुजरता है। क्योंकि माँ का ज्यादा वक्त किचन में गुजरता है तो वो उसके पास किचन में जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात भी जो है वो पैदा हो जाती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और ये खास तौर पर मैं एक छोटी सी बात इससे मौजू से हटके करूंगा कि बच्चे को जो डील कर रही हैं माएँ, उनको खास तौर पर ये चाहिए कि कुछ थोड़ी सी सेफ्टी जो है ये भी करें, जो मैं अभी बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर बच्चे को फीडर में दूध पिला रही हैं तो वो फीडर रख देती हैं, घंटे बाद फिर दोबारा उसको दे देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूध वगैरह जो है ये जब आप फीडर में बच्चा इस्तेमाल कर लेता है उसका थोड़ा सा थूक जो उस फीडर के अंदर भी चला जाता है और उस पर कोई मक्खी या कोई चीज भी बैठ सकती है, कोई कीड़ा भी चल फिर के ऊपर से गुजर सकता है। तो जब भी आप दें दूध, एक दफा इस्तेमाल के बाद उसको जो बच गया उसे जाया कर दें, या उसे इस तरह से सेव कर लें कि दोबारा गर्म करके उसे दें, ताकि उसके अंदर अगर कोई चीज है भी तो वो उसके अंदर से खत्म हो जाए। जी जी। और हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों को किचन में उनका जो दाखिला है उसके सिलसिले में हमारा क्या रवैया आना चाहिए। देखिए, अगर तो बच्चा बहुत छोटा है तो उससे वो एक होती है बच्चों के लिए बनी होती है जिसके अंदर बच्चों को लटाया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि बच्चों को किचन से किसी भी तरीके से दूर रखा जाए, क्योंकि किचन के अंदर ऐसी हजारों चीजें हैं। छुरी है वो पकड़ सकता है, कोई मसाला अपने ऊपर उल्ट सकता है, कुछ चीज अपने ऊपर गिरा सकता है, खुद किसी चीज के ऊपर चढ़ सकता है, स्लिप हो सकता है, क्योंकि किचन की जगह आमतौर पर गीली होती है। तो वहां पर मुनासिब यही है कि उन बच्चों को वहां से दूर रखा जाए।
اچھا صاحب صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چولہے پر کچھ پکاتے ہوئے اگر کوئی کام یاد آ جاتا ہے تو پکانے والا جو ہے وہ چولہے کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے یا چولہے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو کھانا پکاتے وقت جو ہے وہ کس قسم کی احتیاطی سوچ کو رکھنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں کھانا پکاتے وقت اکثر ہوتا یہ ہے کہ کوئی خود واش روم میں جا سکتا ہے، کوئی بچہ آواز دے دیتا ہے، کوئی بچہ گر جاتا ہے، کوئی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو ہم اسی طرح اس کو چھوڑ کر ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اکثر برتن اگر کھلا چھوڑ دیا ہے نا ہم نے، اس کے اندر کوئی چھپکلی، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی بعض کا چھوٹی چھوٹی چیزیں گر جاتی ہیں، کوئی مچھر جا سکتا ہے، کوئی چھوٹی چیز چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے وہ بھاپ نکل رہی ہوتی ہے اوپر سے. جیسے کوئی مکھی اس کے اوپر سے گزرے گی تو وہ گزرتے اسے بھاپ اسے بے ہوش کر کے اس کے اندر پھینک دے گی. لیکن جب ہم اس کے پاس کھڑے ہوں گے تو ہم بہت ساری احتیاطیں کر سکتے ہیں. بعض کا جیسے دودھ رکھا وہ بوائل ہو کے اوپر گر جاتا ہے نیچے، اور کوئی ایسی چیز ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کھانے کو کسی بھی صورت چھوڑ کے نہ جائیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے کچھ ہے تو نیچے سے آگ بند کر دیں اور اوپر سے جو ہے اس کا ڈھکن دے کر پھر وہاں سے جائیں. اور ایسی صورت میں یہ احتیاط کریں کہ آپ نے جو کچھ کھانا اوپر رکھا ہے وہ کسی پرابلم کا شکار نہ ہو، کیونکہ اگر آگ جلتی رہ جائے گی نا تو اس سے وہ دھواں پیدا ہو جائے گا، بھاپ پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، اور وہ جل بھی سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس میں بہت احتیاط کریں، کوشش یہ کریں کہ نہ جائیں وہاں سے، لیکن اگر جانا پڑے تو اس کو سیو کر کے جائیں، آگ بند کر دیں، اس کو ڈھکن دے دیں، اس کو سیو کر لیں تاکہ اس کے بعد کوئی حادثے کا وجہ نہ بن سکے. کیونکہ ہمارے گھریلو جو پالتو جانور ہیں وہ بھی پاس کا تو آ کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو منہ مار دیتا ہے کوئی جانور، کوئی چیز چیڑ دیتا ہے، اور ایون کوئی چھوٹا دوسرا بچہ آ کر اس کو اپنے اوپر الٹ دیتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بچے نے اسی طرح فرائی پین کو پکڑ کے اپنے اوپر الٹ لیا دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا. وہ معصوم سے بچے ہیں، انہیں نہیں پتا، ان کا قصور نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. لہٰذا یہ سب احتیاطیں ہم نے خود کرنی ہیں. جی بالکل سیف صاحب، اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آگ کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب ہم اسے ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے اور مشکلات جو ہیں ہمارے لیے پیدا کر سکتی ہیں. سو ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان خوبصورت احتیاطی تدابیر کو ہمارے ساتھ بانٹا، اور بہت بہت شکریہ. جی جناب، ضرور ہمیں بچوں کو کچن سے دور رکھنا ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. پروگرام میں جس طرح سے ہم آج بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. جناب، جب بھی ہم رشتہ ناتا دیکھنے کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنی عقل کو خدا کے سپرد کریں، چونکہ اس حوالے سے بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے تجربہ کار اور بڑے بڑے عاقل لوگ بھی غلطی کر دیتے ہیں، برا کر جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہم پہلے سے اپنا ذہن تیار رکھیں کہ ہمیں کس طرح کی بیٹی یا کس طرح کا بیٹا چاہیے. اس پر ہم سب سے پہلے ہوم ورک کریں. جس شخصیت سے ہم نے ملنے جانا ہے پہلے سے ہوم ورک کر کے جائیں، جا کر انہیں ملیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی نہ ہو. تو جناب، پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوا. آئیے دعا کریں، پھر دعا کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. خدا قادر مطلق ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے، ان سب کے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو، ہماری مدد فرما. اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہے ہماری زندگی میں تو اسے دور کر دیں. اگر ہماری پوری راہ زندگی کی ٹیم میں یا لسنرز میں کوئی گھریلو جھگڑوں کا شکار ہے، کوئی کاروبار کی تنزلی کا شکار ہے، کوئی بیماری کا شکار ہے، تو اے خدا قادر مطلق یسوع مسیح کے نام سے اس کو ٹھیک کر دے، شفا دے دے، برکت دے دے، بحال کر دے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.